Okay. First of all, good afternoon to all. Good afternoon. Chapter number 3, plant classification, plant kingdom. એની અંદર આપણે ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ, આખો પ્લાન્ટ ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમનો ફંડા શું છે એનું સ્ટડી કરીએ. એની અંદર ફર્સ્ટ આપણે જોવાનું છે આલ્ગી. આલ્ગી. તો કોઈ મને એવું કહેશે કે ભાઈ આલ્ગી છે એ કયા ગ્રુપ્સ ઓફ પ્લાન્ટ, એટલે કે કયા ગ્રુપ્સ ની અંદર આવે છે, પ્લાન્ટના કયા ગ્રુપ્સ નો પાર્ટ છે આલ્ગી? થેલોફાઇટા. થેલોફાઇટા એ ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ છે કે નોન ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ છે? નોન ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ છે. વેરી ગુડ, એક્સેલેન્ટ. ક્રિશા યાદ છે ને? હેલો. હા સર. ઓકે. તો આલ્ગી જનરલી એની હેબિટેટ જોવાની છે ઇઝ અ થેલોફાઇટા ગ્રુપ ઓફ પ્લાન્ટ. પ્લાન્ટની અંદર જે થેલોફાઇટા જનરલી એને એવું કહેવાય કે સિંગલ સેલ હોય અથવા તો સિંગલ ઓર્ગન હોય. સપોઝ આ ટાઈપના પ્લાન્ટની અંદર લીવ્સ ના હોય, સ્ટીમ્સ ના હોય, રૂટ્સ ના હોય, એવું કાંઈ ના હોય. તો એવા ટાઈપના જે પ્લાન્ટ છે એને થેલોફાઇટા કહેવાય. તો આ થેલોફાઇટા છે તો એની અંદર આપણે આલ્ગીનું સ્ટડી કરવાનું છે. ઓવરવ્યુ આજે જોવાનો છે કે આલ્ગીની હેબિટેટ, એની બોડી ઓર્ગેનાઇઝેશન, આલ્ગી ઓલ ટાઈપ ઓફ આલ્ગીની અંદર રિપ્રોડક્શન કેવા ટાઈપે જોવા મળે છે, એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ના ટાઈપ, સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ના ટાઈપ, એન્ડ ધેન આફ્ટર લાસ્ટ આપણે આલ્ગીના ટાઈપ્સ જોવાના છે. 3 ટાઈપ્સ છે, રેડ, ગ્રીન એન્ડ બ્રાઉન. 3 ટાઈપની આલ્ગી છે, રેડ, ગ્રીન અને બ્રાઉન. તો આ 3 ટાઈપની આલ્ગીની હેબિટેટ, પર્ટિક્યુલરલી રેડ આલ્ગીની હેબિટેટ, પર્ટિક્યુલરલી brown algae habitat, particularly green algae habitat, any body organization, reproduction and its key usni any applications. We will be study to all algae, matlab algae ne discuss detail ni andar karwani છે. તો we will be start what is the algae and algae's habitat. Generally kya algae છે found થાય છે એની વાત કરીએ. So yes, algae habitat: aquatic, moisture stone, lichen and algae symbiotic, slot bear algae. मतलब algae છે जनरली एक्वेटिक એટલે પાણીની અંદર ઘણું सबसे ज्यादा पानी के अंदर दिखती है. उसके बाद मॉइस्चर, जहाँ पे मॉइस्चर रीजन हो इस तरह के रीजन्स में दिखती है. उसके बाद लाइकेन है, मतलब algae और जो फंजाई है, algae और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिलता है, मतलब एज अ लाइकेन फॉर्म में भी हमें algae मिलते हैं. उसके बाद स्लोट बियर algae मींस उसका मतलब है कि जो बियर है, इसका मतलब है जो बियर है. सपोज ऐसे रीजन से जहाँ पे बियर है और हमें पता है कि बियर की स्किन पे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी हेयर्स के अंदर जो algae ग्रो होती है, उसके हेयर है उसके अंदर जो algae ग्रोथ होती है, इस तरह की algae को हम बोलते हैं स्लोथ बियर algae. राइट, अंडरस्टैंड? हेलो, यहाँ तक समझ में आता है? हेलो, यस ओके. नेक्स्ट उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है. तो फर्स्ट ये पॉइंट देख लेना है. algae आर क्लोरोफाइल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वेटिक. algae है वो क्लोरोफिलिक है, मतलब फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रोपिक है, अपना फूड है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ओवन फूड मेड प्रोडक्शन सिस्टम, अपना फूड है वो अपने आप बनाती है. थैलोफाइट्स, थैलोइड्स स्ट्रक्चर है उसका सिंपल फॉर्म में थैलोइड्स. किसी को पता है कि व्हाट इज अ थैलोइड्स? यहाँ पे किसी को पता है कि व्हाट इज अ थैलोइड्स? यस सर. यस, गिव मी आंसर. સર ફોટોસિન્થેસિસ થાય ને થેલોઇડ કે થેલોઇડમાં ફોટોસિન્થેસિસ એક સ્પેશિયલ જગ્યા, एक स्पेशल जगह के जहाँ થાઇલાકોઇડ્સ ને થેલોઇડ જ્યાં ફોટોસિન્થેસિસ થાય. ओके, यस. થેલોઇડ મતલબ સિમ્પલી ફોર્મ में થેલોઇડ એટલે કે એવી આલ્ગી, એ ટાઈપની આલ્ગી કે જેની અંદર ફોટોસિન્થેસિસ થશે. मतलब થેલોઇડ ફોર્મમાં જ હોય છે ઓલ આલ્ગી. ઓટોટ્રોપિક છે, લાર્જલી એક્વેટિક છે,
then after other any detail discuss करिए. The form and size of the algae is a highly variable, ranging of the clotinal forms like wallworks and filaments. Clonical forms, sorry T नहीं है, L है, clonical form. जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी algae की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है. वेरियस साइज की algae की स्पीसीज अवेलेबल है. उसके अंदर मेजर दो टाइप की बात करें तो क्लोनिकल फॉर्म में होती है बहुत सारी algae और बहुत सारी algae फिलामेंटस फॉर्म में होती है. जैसे कि हमने फंजाई के अंदर देखा था फिलामेंट, उसके बाद माइसेलियम, उसके बाद हाइफा, इस तरह का कुछ फंजाई के अंदर उसकी ओवरव्यू डिस्कशन के अंदर किया था. ऐसे ही यहाँ पे algae की बात करें तो क्लोनिकल फॉर्म में होती है बहुत सारी algae. लाइक उसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स है, उसका स्ट्रक्चर और साइज है क्लोनिकल फॉर्म में है. और फिलामेंटस फॉर्म में भी बहुत सारी algae होती है. यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा. यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा इज अ फिलामेंटस algae. बहुत बार एमसीक्यूज के अंदर आता है कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा इज अ filamentous, yes or no? And then after give the one specific example of clonical structure of algae. ચાર ઓપ્શન આપેલા હોય, વોલવોક્સ, બ્યુલોથ્રિક્સ, સ્પાયરોગાયરા and then after ક્લેમિડોમોનાસ. તો એમાંથી કયો ઓપ્શન ટિક કરવાનો છે આપણે? Wallworks. Wallworks, very good, excellent. Okay, then after mainly marine, मतलब जे algae છે वो mainly marine होती है. उसके बाद क्लेप्स फ्रॉम मेसिव प्लांट बॉडी. मेनली वो जो प्लांट, जो दूसरे प्लांट होते हैं, जो सपोज मैं बात कर दूं कि मराइन मतलब वाटर के अंदर जो से ओशन का जो पानी है उसके अंदर जो दूसरे प्लांट है उसकी बॉडी की सरफेस के साथ चिपकी हुई बहुत बार देखी जाती है. मतलब ये उसका टाइप ही है, मतलब इस टाइप की एक algae है जो सपोज हमें हमारी टंकियों में देखते हैं. उसके बाद छोटे छोटे पॉन्ड से वहां पे देखते हैं कि कोई जो प्लांट है उस प्लांट अगर वो एक्वेटिक, उसका जो रूट्स और उसका स्टीम अगर पानी के अंदर होगा तो उस स्टीम के सराउंडिंग, सरफेस के सराउंडिंग algae है वो ग्रोथ होगी, algae है वो ग्रोथ होगी. तो क्लेप्स फ्रॉम मैसिव प्लांट बॉडी, मतलब जो प्लांट बॉडी है उसके साथ जॉइंट होती है बहुत बार. एक्वेटिक जो मराइन algae होती है उसकी बात कर रहे हैं. उसके बाद लेट्स वी विल बी स्टडी टू रिप्रोडक्शन ऑफ द algae. रिप्रोडक्शन क्या है, algae के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? फर्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन. वी हैव आल्सो नाउ फ्रेगमेंटेशन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और asexual. Asexual. Asexual, very good. Fragmentation is a asexual reproduction. We will discuss in chapter number 1. And then after, yes, chapter number 1 के अंदर हम जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन पढ़ गए. उसके बाद कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं algae के अलावा जिसके अंदर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है? ओम के अलावा कोई और बोलेगा? नैन्सी और टीशा में से कोई भी बोल सकता है. ऐसा कोई एग्जांपल जिसके अंदर पांचों क्या था? ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है? ऐसा कोई एनिमल algae के अलावा? Fungi. Fungi, very good. Other? Nancy? Sir, moss is नैन्सी, तुम्हारी वॉइस कट होके आ रही है, सो रिप्ले करो प्लीज. दूसरी बार बोलो, तुम्हारी वॉइस पूरी कट होके आती थी, पूरी कुछ सुना ही नहीं दिया मुझे. हेलो, हेलो.
एनीवन? ओम? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा। कोई एनिमल्स का नाम मुझे दे सकते हो? स्पाइरोगाइरा इज algae। algae क्यों? algae की तो बात की मैंने। algae के अलावा कोई एग्जांपल देना है जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Moss. मॉस, दिस इज अ प्लांट। एनिमल का बात कर रहा हूँ। रिमाइंड योर चैप्टर नंबर 1। ऐसा कोई एनिमल था जो अपनी बॉडी के फ्रेगमेंट रिलीज करता था और वो फ्रेगमेंट है वो एज अ न्यू चाइल्ड, एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होता था। हेलो? हेलो? यस सर। बोलो। सर यस। इकाइनोडर्मा। यस, वेरी गुड। स्टारफिश के अंदर था फ्रेगमेंट। यस, वेरी गुड। फंजाई, लील और मॉस जनरली एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, उस एनिमल्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। उसके बाद एसेक्सुअल जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पेशली जूस्पोर के हेल्प से। जूस्पोर इज अ मोटाइल। जूस्पोर कैसे होते हैं? जनरली मोटाइल होते हैं, मतलब उसकी बॉडी सरफेस पे क्या अटैच होगा? फ्लेजेला। यहाँ पे फ्लेजेला लिखा है लेकिन आपको दिखता नहीं है, फोटोज में कट हो गया है। मोटाइल जूस्पोर इज अ बॉडी सरफेस अटैच टू फ्लेजेला, मतलब जो जूस्पोर है उसकी बॉडी सरफेस के सराउंडिंग फ्लेजेलम प्रेजेंट है, उसकी वजह से वो मोटाइल है। सो एसेक्सुअल स्पोर, जूस्पोर मोटाइल है, इसके हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। देन आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी मोटाइल स्पोर होते हैं। उसका एग्जांपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कौन सी मेथड से? तो फ्यूजन मेथड की हेल्प से जो 2 टाइप्स के जो स्पोर होते हैं वो जॉइंट होके न्यू चाइल्ड और न्यू जो algae का जो सेल है, algae है, वो ग्रोथ होता है। दिस टाइप ऑफ स्पोर इज अ मोटाइल एंड सम आर सेम इन साइज। दिस टाइप ऑफ स्पोर, मतलब जो मोटाइल स्पोर होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेलफुल होते हैं, उन सारे स्पोर मोटाइल होते हैं और उसकी साइज सेम होती है। मतलब अब आइडेंटिकली कौन सा स्पोर मेल है और कौन सा स्पोर फीमेल है वो आइडेंटिकली, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दोनों सेम ही दिखते हैं। तो इस तरह के सेल्स को, इस तरह के स्पोर को हमने नाम दिया था आइसोगेमी। आपको चैप्टर नंबर 2 याद होगा आई थिंक, आइसोगेमस। आइसोगेमस मतलब उनके जो मेल और फीमेल जो स्पोर है, गैमेट है, वो स्ट्रक्चरी उसका स्ट्रक्चर और आइडेंटिकली सिमिलर है, आइडेंटिकल सिमिलर है, इसकी वजह से उसको आइसोगेमस बोलते हैं। एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। इस तरह के आइडेंटिकल सेम आइसोगेमस स्पोर क्लेमिडोमोनास के अंदर दिखते हैं। क्लेमिडोमोनास इज वन टाइप ऑफ algae। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ऐसे गैमेट्स कितने हैं? तो फर्स्ट इज अ नॉन मोटाइल, सेकंड इज अ फ्लैजेलेटेड, non-flagellated and flagellated. Non-flagellated is a non-motile and flagellated is a motile. Then after non-flagellated जो स्पोर है, जो नॉन मोटाइल है, ऐसी algae का एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। एंड देन आफ्टर फ्लैजेलेटेड मोटाइल है, ऐसा एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। देन आफ्टर अदर 2 टाइप के, जैसे आइसोगेमस देखा, इसी तरह से एनिसोगेमस और ओगेमस टाइप के 2 टाइप के स्पोर होते हैं, जिसके अंदर एनिसोगेमस के अंदर डिसिमिलर गैमेट्स साइज और शेप में होते हैं, उसको हम बोलते हैं एनिसोगेमस। लाइक एग्जांपल यूड्रोनिया, यूडोरिना जो algae है उसके अंदर एनिसोगेमस टाइप के जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल आइडेंटिकल सेम नहीं होते, दोनों डिसिमिलर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। उसके बाद ओगेमस, वन लार्ज नॉन मोटाइल, वन लार्ज नॉन मोटाइल। ओगेमस के अंदर क्या होगा कि वन जो
स्पोर है वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, एंड देन आफ्टर अदर आर अ स्मॉल एंड मोटाइल, बट दूसरा मोटाइल होगा और स्मॉल होगा, मतलब ऐसा हुआ ए फीमेल ए मेल, फीमेल इज अ लार्ज, फीमेल का सेल लार्ज है बट वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता, क्लियर, बट मेल स्पर्म है, सॉरी मेल जो स्पोर है वो छोटा है बट वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, मोटाइल है। सो आप कह सकते हैं कि अगर जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो फीमेल गैमेट से वो मेल गैमेट्स के पास आएगा या मेल गैमेट से वो फीमेल के पास जाएगा? मेल टू मेल से फीमेल। फीमेल के पास। मेल टू फीमेल, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसको हम इस तरह के जो स्पोर होते हैं उसको हम ओगेमस कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत बार एमसीक्यू में आता है कि यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे होंगे, आइसोगेमस, एनिसोगेमस, ओगेमस, उसकी डेफिनेशन आई होगी और आपको सही जवाब सही के साथ जोड़ना है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि ए के साथ बी आता है, बी के साथ सी आता है, सी के साथ डी आता है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। उस ऑप्शन के डिपेंडिंग आपको सही आंसर चूज करना है, उसकी हेल्प से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इट्स कॉल इज अ ओगेमस। बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, बहुत इजी है, अगर अंडरस्टैंड होता है, आप समझ लेते हैं तो ये बहुत इजी है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये आपके लिए डिफिकल्ट है। और ये चैप्टर ही पूरे 3 या 4 चैप्टर ही ऐसे है जिसके अंदर थियरी तो बहुत इजी है, आप अंडरस्टैंड तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम तक कैसे हमारे ब्रेन के अंदर प्रिजर्व करें वही हमें सीखना है। और इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको रेगुलर मेडिटेशन करना पड़ेगा, दिन में इतना चला ये सब मेरे ब्रेन में है, स्टोर कर लेना है, शाम को आधा से 1 घंटा बैठ के पूरा पूरा का पूरा जो पूरे दिन में जो भी स्टडी करवाए उसको ब्रेन में स्टोर कर देना है, तो ही आप ये सब याद रख सकोगे, वरना आपको याद नहीं रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ द algae, algae की एप्लीकेशंस, उसके अंदर CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ, CO2 का फिक्सेशन होता है, हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, O2 का लेवल इंक्रीज होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी के लिए ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स है लाइक दूसरे सारे जो फिशेस है वो सारी फिशेस समटाइम ये जो algae है उसको खा के सर्वाइव होती है, तो इसकी वजह से उसको प्राइमरी प्रोड्यूसर किया जाते हैं, मतलब एनर्जी ऑल एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद इस तरह के एग्जांपल जो एक्वेटिक हो O2 का लेवल इंक्रीज करते हैं, वो CO2 का CO2 फिक्सेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल हो, इस तरह की बहुत सारी algae है, पोरीफायरा, लेमिनारिया एंड सरगासम, ये 3 टाइप की जो algae है, और दूसरी 70 स्पीसीज है जो मराइन algae है, और इसकी इस तरह की जो 70 स्पीसीज है एज अ फूड यूज होती है, एज अ फूड मतलब जो ऑल एक्वेटिक एनिमल्स भी इसको फूड एज अ फूड यूज कर सकते हैं, और दूसरे सारे भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग भी ऐसे फूड मतलब एज अ फूड यूज कर सकते हैं, सरगासम, लेमिनारिया, पोरीफायरा, इस तरह की कुछ algae है। दूसरी अदर 70 स्पीसीज है ऑफ algae की, व्हाट इज द स्पीसीज वी विल आल्सो डिस्कस, हमें पता है कि स्पीसीज क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी 70 स्पीसीज है हमारे पास कि जो फूड एज अ फूड यूज होती है, जिसके अंदर से एनर्जी आप ले सकते हैं। उसके बाद रेड ब्राउन algae इज अ प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, रेड algae एंड ब्राउन algae, ये 2 टाइप से algae के, उन दोनों टाइप की algae है वो हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करने में हेल्प होती है। हाइड्रोक्लोराइड की कैपेसिटी क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ये जो हाइड्रोक्लोराइड्स है वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। एग्जांपल रेड और ब्राउन algae के उसके अंदर दिया है, एलिजीन इज अ ब्राउन algae एंड कैराग्रीन इज अ रेड algae। नाम पे मत जाइए, ग्रीन अगेन कैराग्रेन लिखा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो ग्रीन होगा, कैराग्रेन मतलब रेड algae is a help of hydrochloride production, and then after allicin is a brown algae is a help also to hydrochloroids production. Then after also algae is a produce for agar. What is a agar? Agar is a primary source for cultivation of many type of bacteria, जैसे कि मैंने बात बताई थी एक इस तरह की कुछ स्लाइड दिखाई थी पेट्री डिश, उस पेट्री डिश के अंदर कुछ सब्सट्रम डाला था,
कुछ हमने सब्सटेंस डाला था, आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ सब्सटेंस था पूरी स्लाइड के अंदर, उसको हम बोलते हैं अगार। और उसके बाद उसके ऊपर हमने कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उसको यहाँ पे ग्रोथ करवाने के लिए डाला था, क्योंकि ये बैक्टीरिया तभी ग्रोथ होगा जब उसको प्राइमरी मतलब एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मतलब फूड मिलेगा। तो एज अ अगार है, वो अगार आल्गी में से प्रोड्यूस होती है, मतलब आल्गी का पाउडर, एनी टाइप ऑफ आल्गी है उसका पाउडर फॉर्म कन्वर्ट करके आप उसके साथ पानी को मिक्स करें तो वो अगार में कन्वर्ट हो जाती है, जेली जैसा बन जाता है, अगार में कन्वर्ट हो जाती है। और इस अगार पे आप कोई भी बैक्टीरिया ले लो, सपोज आपको देखना है कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कितने टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक स्वेप लेना है जो स्टरीलाइज स्वेप हो। स्टरीलाइज उसके मतलब जो आप जो स्वेप ले रहे हो, मतलब जो स्वेप ले रहे हो उस स्वेप के ऊपर 0 बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। और स्टरीलाइज मेथड आप उसको हाई टेम्परेचर में गर्म कर सकते हैं, हॉट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर इथेनॉल और अल्कोहल डाल सकते हैं जिसका से सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। उसके बाद आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इस स्वेप को खींचना है, मतलब ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, उसके ऊपर आपने इस स्वेप को इस तरह से साफ कर दिया। उसके बाद इस स्वेप को यहाँ पे इस तरह से इस प्लेट के अंदर डाल दो। उसके बाद इस ये जो स्वेप है उसको रिमूव करके आप इस प्लेट को 2 दिन 37 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर रख दो। अब जितने भी बैक्टीरियाज है वो बैक्टीरियाज यहाँ पे आ जाएंगे इस प्लेट के अंदर, उस प्लेट के अंदर वो रिप्रोडक्शन करके अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉलोनी फॉर्मेशन होगा और आपको उसको आइडेंटिकली आप देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ बैक्टीरियाज है, उसकी कॉलोनीज फॉर्मेशन हमें दिख सकती है, राइट। तो ये पूरा है अगार प्रोडक्शन, जेलिडियम एंड ग्रेसिलिरिया प्रोडक्शन, यूज ऑफ आइसक्रीम, जेलीज प्रोडक्शन, बहुत सारी जो जेलीज बनती है, जेली वाली चॉकलेट हम खाते हैं ना, तो वो सब अगार में से बनती है, वो सब algae की प्रोडक्ट algae में से बनाई जाती है, मतलब मैनी टाइप ऑफ एज अ फूड 70 स्पीसीज है जो एज अ फूड यूज होती है, उसमें से बनाई जाती है जेली और आइसक्रीम के फ्लेवर। उसके बाद बहुत सारी algae के अंदर प्रोटीन्स भी बहुत सारा होता है, तो प्रोटीन प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारी algae यूज होती है, लाइक उसका एग्जांपल है क्लोरेला। क्लोरेला टाइप की एक algae है जो एज अ प्रोटीन सोर्स, उसके अंदर मैक्सिमम प्रोटीन्स होता है, एज अ प्रोटीन सोर्स यूज होता है। तो सिर्फ एप्लीकेशन 2 मार्क में आ सकती है यहाँ पे algae के जो जूस्पोर, एनिजोसम, आइसोगेमस, ओगेमस, और उसके बाद इसकी ये सब सारी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे दी गई। उसके बाद लेट्स वी विल बी स्टार्ट। तो उसके जो 3 क्लास है, द algae आर डिवाइड इनटू 3 क्लास। फर्स्ट इज अ क्लोरोफाइसी, ग्रीन algae, फियोफाइसी, ब्राउन algae एंड रोडोफाइसी इज अ रेड algae। तो ये 3 algae के बारे में, वो 3 टाइप की algae, डिफरेंट algae है, सबके अंदर डिफरेंट रिप्रोडक्शन सिस्टम है। उसके बाद उसकी हैबिटेट डिफरेंट है, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, तो उसको हमें स्टडी करना है और उसकी एप्लीकेशंस भी देखनी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तभी तक थैंक यू वेरी मच।